Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture on the topic of biopharmaceutical aspects on dosage form design, and now we are talking about the bioavailability and physicochemical and dosage form factors, physicochemical properties of the drug and the formulation factors which affect the bioavailability of drug. Again from the same book, Alton's Pharmaceutics, The Science and Manufacture of Medicine, 5th edition. So let us start. First, the introduction. In the previous chapter, the rate and extent of drug absorption we have already discussed. So, the rate and extent of drug absorption are influenced by, we have already discussed the GI factors, gastrointestinal factors. Now, the rate and extent of drug absorption are influenced by physiologic factors associated with the structure and function of the gastrointestinal tract. This is already we have discussed. Now in this chapter discusses the physicochemical properties of the drugs, and dosage form factors means formulation factors that influence the bioavailability. For a drug to be absorbed, it need to be in solution and to be able to pass the biological membrane or GI membrane, or it should cross the biological membrane. In the case of orally administered drugs, this is the gastrointestinal epithelium. Orally administered drug में तो ये gastrointestinal epithelium है जिस membrane को drug को cross करना पड़ेगा. The physicochemical properties of the drugs that will influence its dosage form into solution and transfer across the membrane include the dissolution rate and pKa means dissociation constant, lipid solubility, chemical stability and complexation potential. All these are the important factors which must be considered as a physicochemical property which influence the drug passage into the solution. यानी ये जो factors हैं dissolution, drug जो है solution form में कैसे आएगी, dissolve कैसे होगी, उसका dissolution rate कैसा है यानी solubility कैसी है, उसका dissociation constant कैसा है यानी ionization potential कैसा है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, केमिकल स्टेबिलिटी वो जीआई ट्रैक्ट में स्टेबल है भी या नहीं है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना लेता किसी चीज़ से. इन तमाम फैक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करते वक्त. नाउ लेट अस स्टार्ट विद फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बायोअवेलेबिलिटी, एंड फर्स्ट थिंग इज, और द फर्स्ट फैक्टर इज which influence the bioavailability is dissolution of drug and the solubility of the drug. Solid drugs need to dissolve before they can absorb. यानी जो भी ड्रग हम ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टैबलेट में है, कैप्सूल में है, पाउडर्स हैं, वो जीआई ट्रैक्ट में जाने के बाद उसको डिज़ोल्व होना चाहिए जीआई फ्लूइड में. जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी. द डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग कैन बी डिस्क्राइब बाय नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन. इसको नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है जो कि ये है. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक फिक्स लॉ ऑफ फर्स्ट डिफ्यूजन. थोड़ा बहुत इसमें और उसमें फ़र्क है. इसमें जो है वो डिसोल्यूशन की बात है, उसमें अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट की बात है. दिस इक्वेशन फर्स्ट प्रपोज इन 1897 डिस्क्राइब द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड थ्रू बाउंड्री लेयर्स सराउंडिंग डिजॉल्विंग स्फेरिकल पार्टिकल्स. यानी जो भी पार्टिकल है वो उसमें जो सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज डिफ्यूजेस कंट्रोल एंड इन्वॉल्व्स नो केमिकल रिएक्शन देन दिस इक्वेट्स द रेट ऑफ डिसोल्यूशन. यानी अगर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dm/dt dA/CS - C upon H. अब इसमें ये dm/dt क्या है, dA क्या है, H क्या है, CS क्या है और C क्या है. नाउ वेयर dm/dt इज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी किस तेज़ी से वो ड्रग जो है वो डिज़ोल्व हो रही है जीआई फ्लूइड में. ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग पार्टिकल. D इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन, यानी कितनी तेज़ी से ड्रग डिफ्यूज़ होती है सॉल्वेंट में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में. A इज द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग पार्टिकल. कितना उसका सरफेस एरिया ड्रग पार्टिकल का, जितना स्मॉल पार्टिकल साइज़ होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना बड़े साइज़ का पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया कम होता चले जाएगा. सरफेस एरिया कम होगा तो डिसोल्यूशन रेट भी यानी सॉल्युबिलिटी रेट भी कम हो जाएगा.
H इज़ द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर अराउंड ईच ऑफ द ड्रग पार्टिकल। उसकी जो थिकनेस लेयर जो है, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर कितनी है, ये इससे इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी लेयर की, उतनी डिसोल्यूशन रेट कम होता जाएगा। CS इज़ द saturation solubility of a drug in solution and in the diffusion layer, and C is the concentration of a drug in the gastrointestinal fluid। देखिए, जिस जगह ड्रग जमा होगी वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उसको सैचुरेशन सॉलिबिलिटी कहा जाती है। लेकिन अगर फ्लूइड और ज़्यादा होगा तो फिर वो सैचुरेशन कम होती जाएगी और ड्रग और ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व होती चली जाएगी, यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी सफिशेंट होनी चाहिए। तो ये टोटल कंसंट्रेशन है और ये टोटल कंसंट्रेशन इन GI फ्लूइड, और ये CS जिस जगह ड्रग बहुत ज़्यादा जमा हो गई है और उसकी सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी तो नहीं आ गई कहीं, यानी कहीं सॉल्वेंट कम तो नहीं पड़ गया, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इसको देखें इक्वेशन को, तो ये जो डिसोल्यूशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल के, सैचुरेशन कंसंट्रेशन माइनस टोटल कंसंट्रेशन इन GI फ्लूइड, उसके डिफरेंस के, जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से ये डिसोल्यूशन होगा, और जो थिकनेस लेयर है उससे ये इनवर्स प्रोपोर्शन। मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन एंड इट्स लिमिटेशन इन डिस्क्राइबिंग डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इज आउटलाइन इन ऑलरेडी इन चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, और वो हमें अभी और ज़्यादा उसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने इसको ऑलरेडी, जितनी हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द इक्वेशन सर्व्स टू इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन हाउ वेरियस फिजिको-केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, and these are summarized in table 20.1 and are discussed in detail in the next section। table 20.1 में ये जो है वो डिस्कस भी किए गए हैं ये डिसोल्यूशन फिजिको-केमिकल फैक्टर्स, और फिगर 20.1 illustrates the dissolution of a spherical drug particle in the gastrointestinal fluid। तो लिहाजा हम एक एक करके पहले टेबल 1 और फिर फिगर 20.1 भी देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टेबल 20.1, physico-chemical and physiological factors affecting the drug dissolution in the gastrointestinal tract। Factors, physico-chemical parameters and physiologic parameters। First factor is the effective surface area of the drug। ड्रग का सरफेस एरिया कितना एक्सपोज हो रहा है सॉल्युबिलिटी के लिए। पार्टिकल साइज, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी तेज़ी से सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि उसका ज़्यादा पार्टिकल सॉल्वेंट से एक्सपोज हो रहा है। ड्रग की अपनी वेटेबिलिटी कितनी है, कितना वो मॉइस्चर को ड्रग सॉल्वेंट को में डिस्ट्रीब्यूट या डिफ्यूज़ हो सकती है। जैसे कि बास सब पाउडर्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, तो उनकी वेटेबिलिटी भी पुअर होती है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी उसकी वेटेबिलिटी होगी तो वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल टैल्क ले लेंगे जो टैल्कम पाउडर में होता है, तो ये जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, इसी तरीके से आप फिजियोलॉजिक पैरामीटर्स लें, surfactants in the gastric juice and bile, pH and buffer capacity of the bile and food components, these all affects the solubility of the drug। इसके अलावा solubility, दूसरा फैक्टर्स है solubility in the diffusion layer। हाइड्रोफिलिसिटी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, सॉल्ट उसका सॉल्युबल है या नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा है। फिजियोलॉजिक में pH एंड मोटिलिटी पैटर्न्स हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन सोल्यूशन, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग खुद कैसी है उसकी, यानी वही वेटेबिलिटी। परमिएबिलिटी, ट्रांजिट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड कंपोजिशन, वॉल्यूम, यानी कितना फ्लूइड है वहाँ पे। कोई एडमिनिस्टर फ्लूइड कोई और तो नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, इन तमाम से डिसोल्यूशन फैक्टर से डिसोल्यूशन पे फर्क पड़ सकता है। डिफ्यूजिविटी ऑफ ड्रग मीन्स मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ड्रग। विस्कोसिटी ऑफ द ल्यूमिन एंड कॉल्टेन, हमने ये बात की थी, विस्कोसिटी अगर ल्यूमिन बढ़ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो जाएंगे। एंड द बाउंड्री ऑफ द लेयर ऑफ द थिकनेस मीन्स मोटिलिटी पैटर्न्स एंड फ्लो रेट रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं फिगर 20.1 की, द डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग पार्टिकल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये ड्रग पार्टिकल है और ये इसकी डिफ्यूजन लेयर है, डिफरेंट डिफ्यूजन लेयर्स। तो ड्रग को जो है वो इन लेयर्स को क्रॉस करके मुख्तलिफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिज़ोल्व होना है। जब वो ये डिज़ोल्व होगी तो फिर डिफ्यूजन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट, फिर वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर को क्रॉस करेगी और
जो सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, या ये कह रही है मीजेंट्रिक सर्कुलेशन में वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर आ जाएगी। तो ड्रग को जो है वो इस तरह से डिफ्यूजन लेयर को क्रॉस करते हुए सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान में डिसॉल्व होना ज़रूरी है। जितनी ये डिफ्यूजन लेयर थिक होती जाएगी उतना फिर ये प्रॉब्लम होता चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने बात की थी कि ये थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर जितनी थिक होगी उतना डिसोल्यूशन रेट यानी सॉल्युबिलिटी रेट कम होता चला जाएगा। नाउ physiologic factors affecting the dissolution rate of the drug. Although various physiologic factors we have already discussed in the previous chapter, but here we will discuss in particular reference or in connection with the physicochemical properties. The environment of the gastrointestinal tract can affect the parameters of Nash-Whitney equation. ये जो Nash-Whitney equation है उसको affect करते हैं gastrointestinal parameters. एंड हैंस द डिसोल्यूशन ऑफ रेट ऑफ द ड्रग। लाजमी बात है जब ये इस इक्वेशन पे असरअंदाज होंगे तो ड्रग के डिसोल्यूशन पर भी फ़र्क पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डी ऑफ द ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मे बी डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यानी जैसे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो होगा उस पर असर पड़ेगा जैसे जैसे विस्कोसिटी जीआई ट्रैक्ट में फ्लूइड्स की बढ़ती जाएगी। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा तो फिर डिसोल्यूशन भी कम हो जाएगा। हैंस द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मे कॉज ए डिक्रीज इन द ड्रग डिसोल्यूशन रेट बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द डिफ्यूजन लेयर सराउंडिंग ईच अनडिसॉल्व ड्रग पार्टिकल। सीधी सी बात है कि जब जीआई ट्रैक्ट में फूड मौजूद होगा तो वो वाटर की क्वांटिटी को कम कर देगा, विस्कोसिटी बढ़ा देगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन लेयर में ड्रग का डिफ्यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। यानी वाटर जो पार्टिकल होंगे या वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूट होना कम हो जाएगा। वैसे भी जब पानी कम होगा तो डिसोल्यूशन तो कम होगा। सर्फेक्टेंट्स इन द गैस्ट्रिक जूस एंड बाइल सॉल्ट्स विल अफेक्ट बोथ द वेटेबिलिटी ऑफ द ड्रग and hence its effective surface area exposed to the gastrointestinal fluid and the solubility of a drug in gastrointestinal fluid via mycelization. ड्रग की वेटेबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, किससे? बाइल सॉल्ट से और सर्फेक्टेंट से जो वहाँ पर मौजूद है, तो उससे भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है, ड्रग की माइसिलाइजेशन पर भी फ़र्क पड़ता है। मीन्स के ग्लोब्यूल्स फॉर्मुलेशन पर्टिकुलरली जो फैट सॉल्युबल ड्रग है। द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर एच will be influenced by degree of agitation experienced by each drug particle in the gastrointestinal tract। वैसे भी हमने थिकनेस के हवाले से देखा है नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन में कि इससे जो डिसोल्यूशन का जो वो है रिलेशनशिप वो इन्वर्स है कि जितनी थिकनेस बढ़ती जाएगी डिफ्यूजन लेयर की उतना ही डिसोल्यूशन कम होता जाएगा। यानी ये लेयर जितनी बढ़ती चली जाएगी, थिक होती जाएगी, उतना ही डिसोल्यूशन स्लो होता जाएगा। Hence, an increase in gastric or intestinal motility may increasing the dissolution rate of sparingly soluble drug by decreasing the thickness of the diffusion layer around each drug particle। लिहाजा जितना GI की मोटिलिटी बढ़ेगी यानी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होंगी उतना ये लेयर थिन होती जाएगी और ड्रग आसानी से इसको क्रॉस करके डिफ्यूजन करते हुए और सॉल्युबलाइज तेज़ी से होती जाएगी, लिहाजा डिसोल्यूशन रेट बढ़ता चला जाएगा। The concentration of a drug in solution in the bulk of gastrointestinal fluid C will influenced by the such factors as the rate of removal of dissolved drug by absorption through gastrointestinal tract by the volume of fluid available for dissolution। Means जो ड्रग डिज़ोल्व होती जा रही है वो इसको क्रॉस करती जा रही है। अब फ्लूइड यहाँ पर अवेलेबल है, जो जिसमें ड्रग अवेलेबल नहीं है, तो वो जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा सॉल्युबिलिटी उस अनडिज़ोल्व ड्रग की बढ़ती चली जाएगी, यानी ज़्यादा फ्लूइड आता चला जाएगा। विच इन टर्न विल डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ ए ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड टाइमिंग विद रिस्पेक्ट टू द मील इनटेक। ये डिपेंड करेगा कि किस जगह पर जो है ड्रग मौजूद है, जहाँ पे जो है वो तेज़ी से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है तो वहाँ पे जल्दी रिप्लेस में फ्लूइड आ जाएगा और अब मोर फ्लूइड विल बी अवेलेबल फॉर द सॉल्युबिलिटी। और फूड पे भी डिपेंड करता है कि फूड होगा तो फिर ज़रा देर से होगा ये प्रोसेस, तो उस वक्त जो होगा फिर वो डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होगी वो इस पर डिपेंड कर रही है, एक तो साइट पर और दूसरा मील की क्वांटिटी पर कि मील वहाँ पर है या नहीं। इन द स्टमक द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड
विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनटेक ऑफ फ्लूइड इन द डाइट, क्योंकि हम पानी पीते हैं खाने के साथ, जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू नाइस-व्हिटनी इक्वेशन, ए लो वैल्यू ऑफ C यानी कंसंट्रेशन विल फेवर more rapid dissolution of a drug by virtue of increasing volume in term the difference of CS minus C, यानी क्योंकि अब अगर ड्रग की डोज कम है, यानी कम क्वांटिटी में ड्रग ली है लेकिन उसके मुकाबले फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो लाजिमी बात है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से डिसोल्यूशन होगा। लेकिन अगर ड्रग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ली है और उसके मुकाबले में पानी कम है तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, यानी डिसोल्यूशन रेट स्लो हो जाएगा। वैसे भी ये हमने देखा है कि कम पानी में शुगर डिज़ोल्व करें तो वो देर से डिज़ोल्व होती है, ज़्यादा पानी में शुगर डिज़ोल्व करें तो वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाती है। इन केस ऑफ ड्रग्स हुज एब्जॉर्प्शन इज़ डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड, द वैल्यू ऑफ C इज़ नॉर्मली कैप्ड वेरी लो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। आमतौर पे वो ड्रग जिनका डिसोल्यूशन रेट वैसे ही बहुत स्लो होता है, यानी खुद ब खुद उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो फिर कोशिश करते हैं कि उनकी क्वांटिटी जो हो या डोज जो हो वो कम रखें ताकि वो आसानी से डिज़ोल्व हो सके, ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रह सके CS माइनस C का, और वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाए। हैंस द डिसोल्यूशन अकर अंडर सिंक कंडीशन, दैट इज़ अंडर कंडीशन दैट इज़ वैल्यू ऑफ CS माइनस C अप्रॉक्सीमेट टू CS, यानी जब आप कम डोज रखेंगे तो फिर सैचुरेटेड कंसंट्रेशन देर से डेवलप होगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये डिफरेंस ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी उन ड्रग की ज़्यादा हो। Thus, for the dissolution of a drug in the gastrointestinal tract under sink condition, the Navier-Whitney equation can be expressed as dm by dt dA CS upon H। जब हम जब C को बहुत कम रखेंगे यानी डोज बहुत कम हो जाएगी तो फिर ये इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल हो जाएगी, इस वजह से टोटल जो होगा वो डिसोल्यूशन वो इस सैचुरेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। नेग्लिजिबल होने की वजह से इसको हमने इक्वेशन से हटा दिया। तो ये नाइस-व्हिटनी इक्वेशन को हमने यहाँ पर देखा और उसका रिलेशनशिप क्या है सॉल्युबिलिटी से और डिसोल्यूशन से। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और द अदर फैक्टर्स आर ड्रग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन रेट। ड्रग फैक्टर्स में ड्रग फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसोल्यूशन रेट आर पार्टिकल साइज एंड द वेटेबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी एंड द फॉर्म ऑफ द ड्रग, वेदर इज सॉल्ट और द फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग, सॉल्ट फॉर्म में ड्रग या फ्री फॉर्म में है ड्रग, तो उसका क्या असर पड़ता है ड्रग की और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर किस तरीके से ये असरअंदाज होती है। तो इसको हम देखते हैं कि इन फैक्टर से ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 20.1, इक्वेशन 20.1 है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ये dA CS माइनस C अपॉन H, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो एन इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड विल इंक्रीजेज द डिसोल्यूशन रेट, क्योंकि इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, ये A जो है सरफेस एरिया इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा डिसोल्यूशन रेट भी उतना फास्ट हो जाएगा। Provided that the each drug particle is intimately weighted by the gastrointestinal fluid and the effective surface area are exhibited by drug will inversely related to the particle size of the drug। लिहाजा लेकिन ये ज़रूरी है कि ड्रग को डिसोल्यूशन में आने के लिए कि हर पार्टिकल जो हो वो आसानी से GI फ्लूइड से वेट हो जाए और उसका सरफेस एरिया वो एक्सपोज हो GI फ्लूइड में। और इसी तरीके से फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल साइज़ बढ़ जाएगा तो वो फिर इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगी डिसोल्यूशन से, यानी अगर पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। मोर द पार्टिकल साइज, ग्रेटर द पार्टिकल साइज, लेस द डिसोल्यूशन रेट। मोर द पार्टिकल साइज, मोर स्मॉलर द पार्टिकल साइज, मोर द डिसोल्यूशन रेट। हैंस द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, वही वाली बात, smaller the particle size, the greater the effective surface area exhibited by given mass of a drug and higher the dissolution rate। तो जितना स्मॉल पार्टिकल साइज होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में होगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये भी आप ये वैसे भी देख सकते हैं, बड़े साइज़ की जो चीनी होती है उसको पानी में डिज़ोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसका डिसोल्यूशन रेट स्लो होता है। जो छोटे फाइन पार्टिकल्स की चीनी होती है वो बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि उसका डिसोल्यूशन रेट
फास्ट होता है क्योंकि उसका जो स्मॉल पार्टिकल साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पार्टिकल साइज रिडक्शन इज दस लाइकली टू रिजल्ट इन इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। इसी वजह से पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। यानी बस जब भी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी उस सूरत में कि अगर उसकी पार्टिकल साइज ज़्यादा होने की वजह से डिसोल्यूशन रेट कम हो रहा है, और डिसोल्यूशन रेट कम होने की वजह से अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसका पार्टिकल साइज ज़्यादा है और उसका डिसोल्यूशन रेट कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, और उसकी वजह से उसकी अगर बायोअवेलेबिलिटी कम हुई हुई है, तो हम उस ड्रग का अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दें, सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो फिर उसका डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। One of the classic example of particle size effect on the bioavailability of a poorly soluble compound is that of Grysofilvin, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, where a reduction of particle size about 10 micrometer with a specific surface area of 0.4 meter square per gram to 2.7 micrometer specific surface area to 1.5 meter square per gram was shown to produce approximately डबल द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इन द ह्यूमन। यानी जब हमने उसका पार्टिकल साइज 10 माइक्रोमीटर से कम करके 2.7 माइक्रोमीटर किया, पार्टिकल साइज रिड्यूस किया, और उसका सरफेस एरिया 0.4 से 1.5 मीटर स्क्वायर पर ग्राम बढ़ गया, तो उससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो यह ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो क्वांटिटी उसकी वही डोज डबल एब्जॉर्ब होने लगी। सो मैनी पुअरली, ये एग्जाम्पल हो गई, मैनी पुअरली सॉल्युबल slowly dissolving drugs are routinely presented in micronized form to increase their surface area। लिहाजा बहुत सारी ड्रग जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है जब उनका पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, तो उसको माइक्रो साइज़ में माइक्रोनाइज कर देते हैं, माइक्रोनाइजेशन कर देते हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है और उनकी बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। Example of drugs where a reduction in particle size has shown to increase the rate and extent of oral absorption and hence bioavailability are mentioned in table 20.2। यहाँ पर टेबल 20.2 में कुछ ड्रग्स की एग्जाम्पल्स दी हैं, इसके अलावा ग्राइसोफिल्विन के अलावा, जिनका जब पार्टिकल साइज रिड्यूस किया गया तो उनका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई। वो ड्रग कौन सी है? डिजॉक्सिन, जो कि एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन विच इज़ एन एंटीबायोटिक, मिथॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, डेनाजोल स्टीरॉइड है, टॉलब्यूटामाइड एंटी डायबिटिक है, एस्प्रिन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सल्फाडायाजीन इज ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल, नेप्रोक्सिन नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आइबुप्रोफेन इज ऑल्सो नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, फेनासिटेन एनाल्जेसिक जिससे पैरासीटामॉल बनती है, ग्राइसोफिल्विन एंटी फंगल, फिनोफिब्रेट लिपिड रेगुलेटिंग एजेंट मीन्स लिपिड लोअरिंग एजेंट, अच्छा, एंटी रेपिटेंट विच इज एंटी इमेटिक ड्रग, रेपामाइसिन इम्यूनोसप्रेसेंट्स, लोपिनावीर एंड रिटेनावीर HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स। तो ये ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई। सो सच इंक्रीज इन बायोअवेलेबिलिटी कैन result in increase in incidences of side effects. Thus, for certain drugs, it is important that the particle size is well controlled, and many pharmacopoeias state the requirement of the particle size. अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर पर भी ये बात कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर ये है कि अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ रही है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। बट ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम ये है कि जब ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर उससे टॉक्सिसिटी यानी साइड इफ़ेक्ट भी आने शुरू हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारी कंपनीज़ ने या फार्माकोपियाज ने बहुत सारे ड्रग के सॉल्ट्स के पार्टिकल साइज़ को भी स्पेसिफाई कर दिया है कि ये ड्रग जो है इस पार्टिकल साइज़ में जो है वो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में फॉर्मुलेट की जाए या सस्पेंशन फॉर्म में तैयार की जाए, ना पार्टिकल साइज़ इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, ताकि उसकी ऑप्टिमम बायोअवेलेबिलिटी हो, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हो और वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो हो वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान रहे, ताकि ड्रग की टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट ना हो, ओवर या ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से कोई टॉक्सिसिटी ना हो। तो फिर कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज़ जो है उन ड्रग का यूज़
किया जाता है. For some drugs, particularly those that are hydrophobic, micronization and other dry particle size reduction technique can result in aggregation of the particle. This is another issue. कुछ पार्टिकल जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, हाइड्रोफोबिक मीन्स लिपोफिलिक इन नेचर, उनकी जब माइक्रोनाइजेशन करते हैं यानी उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं. दिस विल कॉज ए कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन द इफेक्टिव सरफेस एरिया. जब पार्टिकल आपस में एडहेयर हो जाएंगे तो फिर उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा. सो व्हेन द इफेक्टिव सरफेस एरिया रिडक्शन देन द ड्रग एक्सपोज टू GI फ्लूइड एंड हैज़ रिडक्शन इन द डिसोल्यूशन रेट एंड बायोअवेलेबिलिटी. जब पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे तो वो अपने पार्टिकल्स के दरमियान जो वाटर है, GI फ्लूइड है, उसको आने नहीं देंगे. जब नहीं आने देंगे तो उसका डिसोल्यूशन कम हो जाएगा. डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो सॉलिबलाइज नहीं होगी, सॉलिबलाइज नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी. एस्पिरिन, फेनेसिटेन एंड फिनोबार्बिटॉल आर ऑल प्रोन टू एग्रीगेशन ड्यूरिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन. ये एग्जाम्पल दे दी इन्होंने कि एस्पिरिन हो गई, फेनेसिटेन हो गई, फिनोबार्बिटॉल हो गई. जब इनकी माइक्रोनाइजेशन की गई, पार्टिकल साइज रिडक्शन किया तो ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा एग्रीगेट होने लगे जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल GI फ्लूइड में उनके पार्टिकल के दरमियान जाना कम हो गए तो उनकी सॉलिबिलिटी कम हो गई और बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो गई. अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? वन अप्रोच दैट में ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ माइक्रोनाइज और मिल द ड्रग विद वेटिंग एजेंट और हाइड्रोफिलिक कैरियर. एक तो हल ये है कि जब भी इनको माइक्रोनाइज किया जाए तो ड्रग में आप वेटिंग एजेंट यानी कुछ ऐसे सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड कर दें जो कि पेनिट्रेशन बिटवीन द पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल को बढ़ा दें. टू ओवरकम एग्रीगेशन एंड टू अचीव पार्टिकल साइज इन नैनोमीटर साइज रेंज, वेट मिलिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजर हैज़ बीन यूज्ड. लिहाजा इसको पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए नैनोमीटर साइज रेंज में करने के लिए वेट मिलिंग की टेक्निक को भी यूज़ किया जाता है ताकि कुछ ना कुछ जो मॉइस्चर है वो पार्टिकल्स के दरमियान में रहे और वो वाटर को अट्रैक्ट कर सके. द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डेनाजोल हैज़ बीन इंक्रीज बाय 400% बाय एडमिनिस्ट्रिंग पार्टिकल इन नैनोमीटर रादर दैन माइक्रोमीटर साइज रेंज. अच्छा, इस टेक्निक को यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ जैसे डेनाजोल का कि उसकी 400% जो है वो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई जब उसको माइक्रो पार्टिकल के बजाय नैनो पार्टिकल में रिड्यूस किया गया बाय वेट मिलिंग. तो ये टेक्निक इस तरह से सक्सेसफुल रही. अच्छा, इसके बाद आइए आप, देयर आर नाउ सेवरल स्पेशलाइज ड्रग डिलीवरी कंपनीज दैट कैन प्रोड्यूस सॉलिड डोजेज फॉर्म विद ए ड्रग स्टेबलाइज इन नैनोमीटर साइज रेंज टू अफोर्ड ग्रेटर बायोअवेलेबिलिटी. तो बहुत सारी ड्रग कंपनीज जो हैं वो उन्होंने इस तरह के ड्रग के पार्टिकल्स बनाए जो कि नैनो साइज़ के थे, नैनोमीटर रेंज के थे, जिससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो थी वो बढ़ गई. एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियलाइज प्रोडक्ट इम्यूनोसप्रेसेंट रेपेम्यून विच इज सेरुलोमिस, एंटी-इमेटिक प्रीपेटेंट एंड लिपिड लोअरिंग एजेंट फिनोफिब्रेट, जिनको नैनो पार्टिकल में जब कन्वर्ट किया गया नैनो साइज़ में तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई. इसके अलावा मैगेस which is an orally administered nano suspension of magistrol acetate जो कि एक हार्मोन है for the treatment of appetite loss, severe malnutrition और unexplained significant weight loss in AIDS patients, उसमें यूज़ होता है. तो ये भी ड्रग जो है नैनो सस्पेंशन में जब यूज़ हुई तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई. इट इज़ ए फॉर्मुलेशन ऑफ ओरल सस्पेंशन यूजिंग नैनो पार्टिकल और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट. ये जो नैनो सस्पेंशन है ये जो है वो नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ताकि इंक्रीज़ किया जाए डिसोल्यूशन रेट. डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट और फिर बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल फॉर्मुलेशन विल इंक्रीज. द फॉर्मुलेशन इज़ लेस विस्कस, एक तो फॉर्मुलेशन लेस विस्कस है एंड अलाउज क्वार्टर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डोज एंड दस एडिंग पेशेंट सॉलोइंग एंड एडियरेंस. और उससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट आसानी से उसको सॉलो भी कर लेता है और उस पर एडियर भी रहता है, उसकी जो कंप्लाइंस है पेशेंट का वो भी अच्छा हो जाता है और इस तरीके से ड्रग की सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है. सो दिस इज़ द टेक्निक. अच्छा, एज वेल एज बाय मिलिंग
with wetting agent, milling with wetting agent. Effective surface area of hydrophobic drug can increase by addition और addition of wetting agent to the formulation. जैसे मैंने बताया कि वेट मिलिंग में आप क्या करते हैं कि वाटर को पार्टिकल्स के दरमियान में डाल देते हैं, यानी मॉइस्चर ऐड हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो वाटर जब वो GI फ्लूइड में जाएगा तो वाटर को आसानी से अट्रैक्ट कर सकेगा, ड्राइनेस नहीं होगी और पार्टिकल एग्रीगेट नहीं होंगे. द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसॉर्बेट 80 in fine suspension phenacetin, particle size less than 75 micrometer, greatly increases the rate and extent of absorption of phenacetin in human volunteer compared to same size suspension without wetting agent. यानी अब उसमें ये देखा इन्होंने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया फेनेसिटेन का विदाउट पॉलीसॉर्बेट 80 एंड विद पॉलीसॉर्बेट 80. तो जिसमें पॉलीसॉर्बेट 80 ऐड किया गया उससे उस ड्रग का डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ गया और बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ गई. जिसमें पॉलीसॉर्बेट 80 ऐड नहीं किया तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसका डिसोल्यूशन भी कम हो गया और बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो गई और पार्टिकल्स एग्रीगेट करना शुरू हो गए. सो पॉलीसॉर्बेट 80 हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग द वेटिंग and solvent penetration of particle and minimize the aggregation of suspended particle, thereby maintaining large surface area. लिहाजा पॉलीसॉर्बेट 80 क्या कर रहा है, वेटिंग बढ़ा रहा है, यानी वाटर पेनिट्रेशन जो है सॉल्वेंट पेनिट्रेशन पार्टिकल्स के दरमियान बढ़ा रहा है जिससे पार्टिकल एग्रीगेट नहीं हो रहे और इस तरह से उसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है पार्टिकल्स का और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है. वेटेबिलिटी इफेक्ट्स आर हाईली ड्रग स्पेसिफिक, लेकिन ये जो वेटेबिलिटी है ये ड्रग स्पेसिफिक है, यानी हर सॉल्ट में यानी हर ड्रग में ऐसा नहीं होगा कि आप पॉलीसॉर्बेट 80 ऐड करें और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए. हाउएवर वेटिंग एजेंट्स आर रूटीनली एडेड टू मैनी फॉर्मुलेशन. ये अलग बात है कि हम वेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए. अच्छा, इफ एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ ए ड्रग does not increase in absorption rate, it is likely that the dissolution process is not rate limiting. And for drugs such as penicillin G and erythromycin, which are unstable in gastric fluid and their chemical degradation will be minimized if they remain in the solid state. Thus, the particle size reduction would not only serve to increase their dissolution rate but would simultaneously increase the degradation and therefore reduce the amount of intact drug available for absorption. अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जब आप पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करें और इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ाएं तो ड्रग का डिसोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाए और ड्रग का इफेक्ट भी बढ़ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी एंड एरिथ्रोमाइसिन. इसमें क्या है कि जब आप इसका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते हैं इन दोनों ड्रग्स का तो फिर क्या होता है कि इसमें वाटर की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है. वाटर की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है तो वाटर पेनिट्रेशन बढ़ने से ये केमिकली डिग्रेड हो जाती हैं बोथ ड्रग्स, यानी इनमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से फिर ये ड्रग डीग्रेड हो जाती है और ये डीग्रेडेड ड्रग जब एब्जॉर्ब होगी तो इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये फिर इंटैक्ट ड्रग बायोअवेलेबल नहीं होगी. सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर कि हर ड्रग का पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने का फ़ायदा नहीं होता. बाज़ ड्रग की डिग्रेडेशन बढ़ जाती है तो उससे फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो इंटैक्ट ड्रग की है वो भी कम हो जाती है और उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है. तो हमें ये देखना पड़ेगा ड्यूरिंग रिसर्च कि किस ड्रग का पार्टिकल साइज रिड्यूस करने से उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है और उसका फ़ायदा है और किसका जो है वो फ़ायदा नहीं है. So this is all about of this lectures. Soon we will come back with another lecture and we will discuss solubility in the diffusion layer CS. Thank you very much.